I'm so blessed and so glad to have Sharmila ji in our film. And I think she is an iconic lady, and she's so complete. She's a person with a lot of courage, valor, and a lot of values, and such an accomplished actor for so many years. And still, she's so relevant. I think her new releases with Bul Mohor, and which already won a national award, and I'm so proud to see her. So like she has such infectious energy, and she's so committed to her craft that it amazes me. After so many years, she's 80 years old, and she has just celebrated her 80th birthday. And in our film, we also have a portion of her birthday celebration there. And I think I cannot explain how glad I am to be associated with her, and I'm blessed that she loves me, and she's very, very fond of me. And she expressed her desire to come into Bengali films after a very long time. So we were just having a random discussion, and she said that, you know what, I want to do a Bengali film, and if you can give me a great script and it is with you, I will definitely love to do it. And so it was going on in my head that, of course, Sharmila Tagore, Bengali film, some great script has to be given to her. So eventually, the director of this film, whose name is Shumon Ghosh, who is another national awardee, and he's a professor of economics. This is not absolutely his profession, but he actually had this obviously he has got this whole affinity to make films, and his other films had also got a lot of accolades. And actually he came to me um, to take an interview in Aparna Sen's for Aparna Sen's documentary, which he was making that time. So that time he said that, in 1 month's time I'm going to meet Sharmila Tagore and Mamata Shankar for a discussion on Satyajit Ray centenary year, and it is in California. I said, "Oh my God, you're meeting her! I just had a word with her that we can do a film together. If you have something interesting, let me know." So we actually discussed that time and said that let's make a mother and daughter story, which is like on human relationship. And mother and daughter story actually gives you a that whole depth of relationship of a mother and daughter, which is so precious. Associate director Monica, who has done a lot of international films, and Ikavali, who is another very accomplished actor. I think the whole palette looks very beautiful, and we have shot in Kolkata, in Meghalaya, very virgin locations, and so yeah. So that's about the film, and I'm really happy to meet the media in Delhi, because I always wanted to meet all of you for the simple reason, Delhi, I always feel that it has got that energy, that whole excitement, and so I really wanted to meet you all and talk about this. I have my friend Anshu, Dr. Anshu here also to support me. And thank you, Parul, for being such a great support. She has flown from Mumbai to support this press conference. And of course, I thank Maina for this beautiful location, this Travancore. भाषा का ना बहुत एक ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम या इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो रहा है भाषा एक्चुअली इस वी हैव ट्रांसेंडेड द बाउंड्रीज भाषा की अभी इसलिए मैंने बोला कि ये भाषा की बात नहीं है ये फीलिंग की बात है बिकॉज मूवी को हम सब लोग अभी कोरियन फिल्म देख रहे हैं अभी चाइनीज फिल्म देख रहे हैं अभी जर्मन फिल्म देख रहे हैं फ्रेंच फिल्म्स देख रहे हैं तो उसके साथ हम लोग आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं मतलब वी कैन आइडेंटिफाई विद देम बिकॉज वो कुछ कुछ इमोशंस होता है वो बहुत ही मतलब बहुत यूनिवर्सल है वो अभी मदर एंड सन का जो रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप या एक फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप या कोई सिचुएशन की अगर कुछ सिचुएशन हुआ फैमिली में वो उसका जो रिलेशनशिप वो सब थोड़ा बहुत कल्चरल डिफरेंस होता है लेकिन लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप में वो एक जगह आ जाती है सब तो इसीलिए भाषा की कुछ उतना भी मतलब हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज भाषा इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एनी मोर बिकॉज सब भाषा में हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है एंड वी वांट टू सी फिल्म्स इन मेनी मेनी लैंग्वेजेस दैट इज द पॉइंट बिकॉज ओपनिंग द ओटीटी एंड गिविंग सच बिग ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ओटीटी जहाँ पे ओटीटी आ गए हैं तो हम लोग की जो फिल्म का जो वर्ल्ड है वो बहुत स्मॉल हो गया है इट इज़ बिकम अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड इसीलिए
पहले जो होता था, वी डिडंट गेट एनी एक्सेस टुवर्ड्स दिस फिल्म्स, हमारे पास वो एक्सेस नहीं थे। लेकिन अभी जो एक्सेस हो गया तो लोग हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग दिस थिंग्स, सो हमारी कंटेंट उतना ही अच्छा होना चाहिए जो फिर कंपेरेबल जगह जाना चाहिए। नहीं नहीं, कैलकाटा फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत नाम है। कैलकाटा फिल्म इंडस्ट्री में सत्यजीत रे है, ऋतिक घटक है, तपन सिन्हा है, बुद्धदेव दासगुप्ता है, मृणाल सेन है, बहुत सारे, अभी सृजित मुखर्जी है, कौशिक गांगुली है, शिव प्रसाद नंदिता दी है, तो बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिसके नाम हम ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कैलकाटा की जो है, हम लोग रीजनल बाउंड्रीज में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे फिल्म्स जा रहे हैं बाहर। हम कोशिश कर रहे हैं और भी उसका ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, इसीलिए ये सब फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि जिसके ज़रिए हम लोग पहुंच सकते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस तक। तो ये फेस्टिवल्स बहुत मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में और हमारे काम को एक्चुअली शोकेस करने में। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम ये सब फेस्टिवल्स में आए और हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन हुए। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर लुकिंग फॉर। इसीलिए इसका जो पब्लिसिटी वहाँ होगा, तो और थोड़ा सा ऑडियंस को भी ना कॉन्शियसली प्रमोट भी करना पड़ता है। लाइक साउथ इंडियन ऑडियंस या मराठी ऑडियंस या गुजराती ऑडियंस, दे आर गुड विथ प्रोमोटिंग देयर ओन लैंग्वेज। तो बंगाल में भी वैसे भी होना चाहिए। बंगाल इज लिटिल फ्लॉड विथ ऑल काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, तो थोड़ा सा बंगाल को भी थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़ाना चाहिए इस मामले में। मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड वुमन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, क्योंकि उनकी जो जुनून है, उनकी जो वजूद है, उनकी जो डेडिकेशन है, अपनी अदाकारा में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, शी इज़ अ ग्रेट अदाकारा। वो इसमें तो कोई टू माइंड्स नहीं है, टू वेज नहीं है। लेकिन जो उनकी अभी भी जितना वो दे सकती है उसके ज़्यादा देती है, और अपनी इतना मेहनत करती है इस उम्र में भी। आई डोंट नो वेदर वी कैन डू और नॉट, बट शी इज़ एन एग्जाम्पल इन हर्सेल्फ। और उसमें वो घर से फ़ोन आती है तो उसका भी बात कर रहे हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी बात कर रहे हैं, अपनी बेटा बेटी से भी बात कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी, शी इज़ कंप्लीट इन एवरी पॉसिबल वे। सो उनके साथ काम करना इज़ लाइक अ gift to me, like I think I've learned so much from her, and she has conducted her life so gracefully, और अपनी जो ज़िंदगी को उतना अच्छे से संवारा, इतने सारी मतलब इतना सारा मतलब सारे ज़िंदगी उसको लाइमलाइट में, शी रिमेन्ड इन द लाइमलाइट, लेकिन इतना सारा कुछ मिला उसको, फिर भी शी इज़ सो ग्राउंडेड एंड सो ब्यूटीफुल, एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एंड शी इज़ गॉर्जियस, and she's absolutely out of the world. And Pani Puri though is my favorite. Back in Kolkata also, I just hog fuchkas. In Kolkata, we talk, say fuchka, right? So Pani Puris and Delhi, and also the old Delhi Mughlai food. Like all those galoti kebabs and those sort of all the fantastic kebab ferry I love. So yeah, food is something is very interesting in Delhi, and I love it. Yes. किसी फिल्म को बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाना बहुत बड़ी अहमियत रखता है। कैन फिल्म हो, ऑस्कर हो, या जो नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल आपकी फिल्म गई, तो ये फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई फिल्म आपकी जैसे करती है, बहुत बड़े क्रिएटिव एक्टर हैं और प्लेटफॉर्म पे फिल्म जाती है, जब क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। और हमारी जो फिल्म है पुरातन ऑलरेडी गॉट अ फ्यू अवार्ड्स इन द इंटरनेशनल फोरम। हमारा DSS जो DC एशियन फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुके हैं। ह्यूस्टन में मिला है, मामी में इसका शोकेसिंग हुआ है, और इधर भी दिल्ली में इतना अच्छा फेस्टिवल नहीं हुआ। सो आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड जो भी फिल्म ऑस्कर एंट्री या कान में जाते हैं तो we feel very very proud, because it's not about me but it's us, because our thing is that our pledge is that our films, Indian films, has to have a proper global representation. So wahan pe, I mean, I feel very very, even Santosh has gone for an Oscar nomination, and today Anusha Sengupta has got a best actress in Cannes. So what can be better than this? So we will always be supportive about each other to promote each other's films and be there, and because it's a fraternity. It's not about any particular individual person. It is a fraternity that we are talking about. So fraternity wins, everybody wins. So I think I believe in that.